students, how are you? Hope so you will be fine and safe at your homes. So students, as you know, we are discussed about our previous lecture we are solved our numericals of chapter number 3. Now today we have solved our remaining numericals. Student, now open your books, page number 83, numerical number 3.4. First of all, we have to read the statement 3.4 numerical. Find the acceleration produced by a force of 100 Newton in a mass of 80 kg. As in the numerical given data is force is equal to 100 Newton and mass is equal to 50 kg. First of all, we have to write the given data of question 3.4. Given data of the numerical is, we have to given the force which is equals to 100 Newton and secondly mass is equal to 50 kg. We have to find the acceleration. As we know the formula of Newton's second law of motion by using Newton's second law of motion, which is equal to F is equals to ma. F is also given, which is equals to 100 Newton, mass is equals to 50 kg and acceleration is fine. 50 kg is multiplied, we have to solve the acceleration. On the next side 50 kg is divided, 50 is equals to acceleration. 100 divided by 50 is equals to 2 and it is equals to acceleration. Acceleration is equal to 2 meter per second square. Meter per second square is the unit of acceleration. So it is the answer of the 3.4 numerical. Okay students, again I repeat this, we have to find the acceleration. Force is given, force is equals to 100 Newton, mass is equal to 50 kg. We have to find the acceleration. According to Newton's second law of motion, force is equals to ma. 100 Newton is equal to 50 kg. 50 kg multiply हो रहा है, second side पर side change करेंगे, then 50 kg is divided. 100 divided by 50 is equal to acceleration. Okay, 100 divided by 50 is equals to 2. So students, acceleration we have to find acceleration. Acceleration is equal to 2 meter per second square. Is it clear students? It is the answer of the 3.4 numerical. Okay, now we have to start the fifth numerical, which is 3.5. Look at your books, page number 83. Next numerical 3.5. A body has weight 20 Newton. How much force is required to move it vertically upward with an acceleration of 2 meter per second square? मीन्स एक बॉडी है जिसका वेट है 20 न्यूटन. हाउ मच फोर्स मीन्स आपको कितनी फोर्स चाहिए इज रिक्वायर्ड टू मूव इट वर्टिकली अपवर्ड. मीन्स आपने उसको ग्रेविटी के अकॉर्डिंगली डाउनवर्ड पोजीशन से अपवर्ड पोजीशन में मूव करवाना है. ठीक है, विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसमें एक्सेलरेशन गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की. स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट फोर्स का यूनिट भी कितना है, न्यूटन है, और वेट का यूनिट भी न्यूटन ही है. सो फर्स्ट फोर्स गिवन है, आपने सेकेंड फोर्स और नेक्स्ट टोटल फोर्स जितनी हाउ मच फोर्स आपने जितनी टोटल फोर्स यूज की है बॉडी को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाने के लिए वो आप फाइंड करेंगे. ओके, नाउ वी हैव टू सॉल्व आवर नेक्स्ट न्यूमेरिकल. नेक्स्ट 3.5. गिवन डाटा. Okay, a body has weight 20 Newton. Weight is equals to also force because the unit of weight and force is Newton. Okay students, first force is equals to 20 Newton. Second force आपने फाइंड करनी है. ठीक है, सेकेंड फोर्स भी फाइंड करनी है और उसके अलावा आपने हाउ मच फोर्स यानी टोटल फोर्स जितनी रिक्वायर्ड थी आपने वो भी फाइंड करनी है. Force is required to move it vertically upward with an acceleration. Acceleration given है 2 meter per second square. Okay students, now first of all यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वैल्यू अप्लाई करेंगे. एज वी नो दैट F is equal to weight.
फोर्स इज इक्वल टू वेट एंड वेट इज ऑल्सो इक्वल्स टू m इंटू जी। ठीक है स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑफ ऑल हम मास फाइंड करेंगे। आफ्टर फाइंडिंग मास हम क्या करेंगे, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे, देन हम क्या फाइंड करेंगे, सेकंड फोर्स। ओके, F1 is equal to W weight because force and weight has similar units. F1 is equal to weight and weight is equals to mg. Okay, F1 is equals to 20 Newton and we have to find the mass. Students, as you know, gravity is equals to gravitational acceleration is equal to 10 meter per second square. ठीक है, so 20 Newton is equals to mass and gravity is equals to 10. 10 डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, सेकेंड साइड उसकी साइड चेंज करेंगे तो 10 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो 20 इज डिवाइडेड बाय 10 विच इज इक्वल्स टू mass. 10 डिवाइडेड बाय 2, सो mass इज इक्वल्स टू 2 kg. ओके, यूनिट्स आपने साथ साथ मस्ट मेंशन करनी है, ठीक है, यूनिट्स में। सो mass इज इक्वल टू 2 kg। यहाँ हमने mass फाइंड कर लिया है। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हमने सेकेंड फोर्स फाइंड करनी है। सेकेंड फोर्स फाइंड करने के लिए हम अगेन अप्लाई करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन बाय यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ, ओके, विच इज इक्वल्स टू F इज इक्वल्स टू ma। स्टूडेंट्स देखिए, फर्स्ट फोर्स F1 गिवन है, F2 आपने फाइंड करना है। यहाँ पर F1 मैंने इसलिए राइट किया था क्योंकि फर्स्ट फोर्स गिवन थी। अब एज इट इज यहाँ पर हमें सेकंड फोर्स फाइंड करनी है, तो यहाँ पर हम F2 राइट करेंगे। ठीक है, सो F2 इज इक्वल्स टू मास हमने अभी रिसेंटली फाइंड किया है विच इज इक्वल्स टू 2 kg एंड एक्सेलरेशन इज गिवन विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू 2। सो सेकेंड फोर्स इज इक्वल्स टू 2 2s are 4 kg। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट फोर्स भी फाइंड हो गई, फर्स्ट फोर्स तो गिवन थी, सेकंड फोर्स हमने फाइंड कर ली है। अब उन्होंने हमें कहा था हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड, मींस आपने इनकी टोटल सम जो फोर्स है वो आपने फाइंड करनी है। सो टोटल फोर्स इज इक्वल टू F1 प्लस F इंटू 2। अब दोनों फोर्सेस को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो आपके पास फोर्स का सम आ जाएगा 20 प्लस 4, so force is equals to 24 Newton. Okay students, again मैं रिपीट कर देती हूँ आपको क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। फर्स्ट फोर्स हमें गिवन है विच इज इक्वल्स टू 20 न्यूटन, सेकेंड फोर्स हमने फाइंड करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन गिवन, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अकॉर्डिंगली सिचुएशन हमने क्या करना है, हमने सेकेंड फोर्स फाइंड करनी है। ठीक है, सेकेंड फोर्स फाइंड आउट करने के लिए हमने फॉर्मूला अप्लाई किया F1 इज इक्वल टू W बिकॉज फोर्स एंड वेट हैज सेम यूनिट्स एंड W इज इक्वल्स टू m इंटू जी। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमने क्या फाइंड किया, हमने मास फाइंड किया। सो F1 इज इक्वल टू 20 न्यूटन इज इक्वल्स टू m इंटू 10। एज यू नो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो 10 की वैल्यू हमने ग्रेविटी की यहाँ पर अप्लाई की। अब आप देख सकते हैं कि 10 जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है एंड सेकंड साइड पर हमने उसको डिवाइड किया। 20 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल्स टू 2। सो मास इज इक्वल्स टू 2 kg। मास हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम अपनी सेकंड फोर्स फाइंड करेंगे एंड सेकंड फोर्स इज इक्वल्स टू F2। अब यहाँ पर हमने बाय न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई किया। बाय यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F2 इज इक्वल्स टू m इंटू a। ओके, मास हमने अभी रिसेंटली फाइंड किया जो कि क्या है 2 kg। एक्सेलरेशन गिवन है, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 2। सो 2 इंटू 2, 2 2s are 4। सेकेंड फोर्स भी फाइंड हो गई। कंडीशन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग मैंने कहा था कि आपने टोटल फोर्स फाइंड करनी है। देन टोटल फोर्स इज इक्वल्स टू F1 प्लस F2। F1 गिवन थी, F2 हमने फाइंड की, दोनों को सम किया, आपका आंसर क्या आया, F इज इक्वल्स टू 24 न्यूटन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 6। लुक एट योर बुक्स। Two masses 52 kg and 48 kgs are attached to the ends of a string. Students, ये आपका जो टॉपिक है टेंशन, फाइंड द टेंशन एंड एक्सेलरेशन इन द स्ट्रिंग, ये उससे रिलेटेड है। न्यूमेरिकल नंबर 3.6 जो है वो फर्स्ट केस से रिलेटेड है एंड न्यूमेरिकल 3.7 जो है वो आपका सेकंड केस से रिलेटेड है। ओके, टू masses 52 kgs and 48 kgs are attached to the ends of a string that passes over a frictionless pulley.
एज यू नो, जैसे आपने टॉपिक्स में पढ़ा था कि आपके पास 2 ब्लॉक्स हैं और उन दोनों ब्लॉक्स को आपने क्या किया, एक फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से आपने क्रॉस करवाया। फर्स्ट मैथ जो था ब्लॉक का दैट इज m1 एंड सेकंड ब्लॉक जो था वो क्या था m2। उसके अकॉर्डिंग आपने टेंशन एंड एक्सेलरेशन फाइंड की थी। अब वही टेंशन और एक्सेलरेशन की जो फॉर्मूलाज हैं उनमें हम वैल्यूज पुट करके इन वैल्यूज को फाइंड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, 2 masses 52 kg and 48 kgs are attached to the ends of a string that passes over a frictionless pulley. Find the tension in the string and acceleration. Means आपने tension और acceleration find out करनी है in the bodies when both the masses are moving with vertically. ठीक है, both masses जो है वो क्या move करें, vertical direction में। Start करते हैं अपने question। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन डाटा में आपके पास जस्ट मैसेज ही गिवन है। m1 is equals to 52 kg and m2 is equals to 48 kg। फाइंड आउट में करनी है इसकी एक्सेलरेशन एंड टेंशन। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे किसका, टेंशन का। ठीक है, देन टेंशन इज इक्वल्स टू, टेंशन फाइंड करने के लिए आपने याद होगा आपको कि आपका जो टेंशन थी वो आपने फाइंड की थी, उसका फॉर्मूला है 2 इंटू m1 मल्टीप्लाई बाय m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाय g। राइट करते हैं, 2 इंटू m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाय g। m1 एंड m2 बोथ हम लोगों के पास गिवन है और ग्रेविटी जैसे आपको पता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके ओके, स्टार्ट करते हैं। t इज इक्वल टू 2, m1 की वैल्यू 52, m2 इज इक्वल्स टू 48 डिवाइडेड बाय 52 प्लस 48 एंड ऑल्सो मल्टीप्लाइड बाय 10। ओके स्टूडेंट्स, आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास टेंशन आपने फाइंड की, तो टेंशन के लिए फाइंड करने के बाद आपके पास आंसर आया 2 इंटू 52 एंड 52 इंटू 48 को जब आपने मल्टीप्लाई किया आपके पास आंसर आया 4999 ऑल्सो डिवाइडेड बाय 52 प्लस 48 इज इक्वल्स टू 100 एंड मल्टीप्लाइड बाय 10। ओके स्टूडेंट्स, आपने 2 को 52 से एंड देन 48 से मल्टीप्लाई करवाया, उसके बाद आपके पास आंसर आया 4992। 52 और 48 को आपने ऐड करवाया, इट्स आंसर इज 100 एंड ऑल्सो मल्टीप्लाइड बाय 10। 0 इज कैंसल्ड बाय दिस 0, सो टेंशन इज इक्वल्स टू 4992 डिवाइडेड बाय 10। आप डिवाइड करेंगे देन टेंशन इज इक्वल्स टू 499.2 which is approximate equals to 500 Newton. Okay students, so tension आपकी फाइंड हो गई है which is equals to 500 Newton। हमने जस्ट टेंशन का फॉर्मूला था, उसमें हमने m1 m2 और ग्रेविटी की वैल्यूज पुट की हैं और कैलकुलेटर से आप इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट इसकी एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। ओके टेंशन हमने फाइंड कर ली है, अब एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 एंड ऑल्सो मल्टीप्लाइड बाय g। एज इट इज हम इसमें एक्सेलरेशन की, मैथ्स की और बाकी जो है वैल्यूज को पुट करेंगे। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू m1 52 माइनस 48 डिवाइडेड बाय 52 प्लस 48 एंड मल्टीप्लाइड बाय 10। एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए ओके 52 में से हमने 48 को माइनस किया विच इज इक्वल्स टू 4। 52 minus 48 is equals to 4 and divided by 52 plus 48 is equals to 100 and multiplied by 10.
0 is cancelled by this 0, and acceleration is equals to 4 over 10. So acceleration is equals to 0.4 meter per second square. It is the value of acceleration. Okay students, now we have to solve the numerical number 3.7. Now read the statement. It's the second case of tension and acceleration in the string. Two masses 26 kg and 24 kgs are attached to the ends of a string which passes over a frictionless pulley. Remaining cases की तरह यहाँ पर भी आपके पास 2 ही blocks हैं और 2 ही blocks के 2 masses हैं. First is 26 kg and second one is 24 kg. 26 kg is lying over a smooth horizontal table. Means आपके पास जैसे केस में आपने पढ़ा था कि एक ब्लॉक है जो आपके पास टेबल के ऊपर है और सेकंड ब्लॉक जो है वो पुली के साथ डाउनवर्ड पोजीशन में, मींस एक टेबल के ऊपर एक ब्लॉक है और सेकंड ब्लॉक जो है वो टेबल से डाउनवर्ड पोजीशन में है, एक स्ट्रिंग के साथ अटैच है. तो टेबल के ऊपर जो ब्लॉक है उसका वेट है आपके पास 26 kg और जो डाउनवर्ड नीचे लाइन पोजीशन में है उसका वेट है आपके पास 24 kg. ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे. न्यूमेरिकल नंबर 3.7. ओके स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डायग्राम ड्रॉ करेंगे. डायग्राम ड्रॉ करके फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि हमने फर्स्ट मैथ किसको लेना है और सेकंड मैथ किसको लेना है. ठीक है, एज इट इज जैसे कंसीडर कर लें कि आपके पास टेबल है और टेबल के ऊपर एक ब्लॉक है. ठीक है, टेबल के ऊपर जो ब्लॉक है उसको हम M2 का नेम देते हैं और सेकंड जो ब्लॉक है वो आपके पास एज इट इज इस तरीके से फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से क्रॉस हो रहा है एंड दिस वन इज इक्वल टू M1. सो M1 इज इक्वल टू, अब अकॉर्डिंगली कंडीशन उन्होंने हमें कहा है कि टेबल के ऊपर 26 kg is lying on the table and 24 kg is in downward position. So M1 is equals to 24 kg and M2 is equals to 26 kg. Okay students, अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. Given data, अब M1 is equals to 24 kg and M2 is equals to 26 kg. Okay, एक्सेलरेशन एंड टेंशन हमने यहाँ पे भी फाइंड करनी है. ठीक है, सो एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे एंड देन टेंशन फाइंड करेंगे. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम क्या करेंगे, अपना एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे विच इज इक्वल्स टू M1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 मल्टीप्लाइड बाय G. M1 इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 multiplied by G. Okay students, A is equals to M1 is equal to 24 kg and M1 plus M2 24 plus 26 multiplied by 10. अब नेक्स्ट सेकंड केस में हम इसको सॉल्व करेंगे. Acceleration is equals to 24 divided by 24 plus 26 is equals to 50 and multiplied by 10. So we have to cancel. Acceleration is equals to 24 divided by 5. कैलकुलेटर से आप उसको सॉल्व करेंगे and 24 divided by 5 is equals to 4.8. 4.8 meter per second square. That is your acceleration. ठीक है, आपने क्या किया, आपने एक्सेलरेशन के फॉर्मूला में दोनों वैल्यूज को पुट किया. ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टेंशन का फॉर्मूला अप्लाई करके उसको हम टेंशन फाइंड करेंगे. ठीक है, फॉर्मूला है टेंशन इज इक्वल्स टू M1 इंटू M2. एक्सेलरेशन में जस्ट हमारे पास न्यूमरेटर में M1 है और टेंशन में M1 एंड M2 बोथ जो है दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं. ठीक है, सो टेंशन इज इक्वल्स टू M1 and M2 divided by M1 plus M2 multiplied by gravity. वैल्यूज अप्लाई करते हैं. टेंशन इज इक्वल्स टू M1 इज इक्वल टू 24 इंटू, अब 26 को आप मल्टीप्लाई करवाएंगे 26 डिवाइडेड बाय 24 प्लस 26 एंड मल्टीप्लाइड बाय 10. ओके,
24 multiplied by 26 is equals to 624. 24 को आप 26 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, दैट्स आंसर इज 624 एंड 24 प्लस 26 इज इक्वल्स टू 50 मल्टीप्लाइड बाय 10. So tension is equals to 624 divided by 5. 624 को आपने 5 से डिवाइड किया, so इट्स आंसर. अब इसका आंसर आपके पास क्या होगा? इसका आंसर ये होगा, आप इसको डिवाइड करेंगे विच इज इक्वल्स टू 124.8. 124.8, so which is equals to 125. जैसे कि आप जानते हैं 124.8 है, आप इसको राउंड ऑफ करेंगे, so tension is equals to 125 Newton. Okay, next numerical students, look at your books. How much time is required to change 22 Newton second momentum by a force of 20 Newton? Okay, numerical number 3.8. How much time is required means आपने इस न्यूमेरिकल में क्या फाइंड करना है? टाइम फाइंड करना है. एंड टू चेंज 22 न्यूटन सेकेंड मोमेंटम मीन्स आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम गिवन है. एज यू नो फॉर्मूला यूनिट ऑफ मोमेंटम इज न्यूटन सेकेंड. सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल्स टू 22 न्यूटन सेकेंड बाय अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन. फोर्स गिवन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम गिवन है, आपने फाइंड क्या करना है? टाइम. ओके, given data, as you know P represents momentum and del represents change, so del P represents change in momentum. Students, इससे रिलेटेड आपका टॉपिक भी है जिसमें आपने पढ़ा होगा the rate of change of momentum is equals to force. तो आप यही रिलेशन यहाँ पर यूज करेंगे. So change in momentum is equals to 22 Newton second and force is equals to 20 Newton. टाइम आप फाइंड करेंगे. ठीक है, ओके, फॉर्मूला पुट करते हैं. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल्स टू फोर्स. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. स्टूडेंट्स, रेट जब हम वर्ड यूज करते हैं, रेट यूज होता है टाइम के लिए. ठीक है, सो टाइम गिवन है, आपने मोमेंटम को टाइम से डिवाइड किया विच इज इक्वल्स टू फोर्स. ओके, वैल्यूज पुट करेंगे. चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल्स टू 2, एफ और टी को रिप्लेस करेंगे. ठीक है, F is equals to time. F की वैल्यू आपके पास गिवन है, so 22 divided by force is equals to 20 Newton and time आपने फाइंड करना है. So 22 divided by 20 is equals to 1.1 second. This is your time. Okay students. Next numerical, numerical number 3.9. How much is the force of friction between a wooden block of mass 5 kg and the horizontal marble floor? स्टूडेंट्स, ये आपका न्यूमेरिकल फ्रिक्शन वाले टॉपिक से रिलेटेड है. उसमें आपने फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रीड किया होगा, सो उसी से रिलेटेड है. हाउ मच फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, आपने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करनी है. कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज गिवन विच इज इक्वल्स टू 0.6 एंड मास इज इक्वल्स टू 5 kg. न्यूमेरिकल नंबर 3.9. ओके, आपने फाइंड क्या करना है? फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन. Fs रिप्रेजेंट्स फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, जो कि आपने फाइंड करना है. मास इज इक्वल्स टू 0.5 kg. मास इज इक्वल्स टू 5 kg एंड म्यू इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. ठीक है, म्यू इज इक्वल्स टू 0.6. ओके जी, एज यू नो Fs इज इक्वल्स टू mu m and g. It is the formula of force of limiting friction. ठीक है स्टूडेंट्स, ग्रेविटी की वैल्यू हमें पता है एंड मास गिवन है एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी गिवन है. सो वैल्यूज को पुट करते हैं. Fs is equal to कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.6, mass is equals to 5 and gravity is equals to 10. डेसिमल रिमूव करेंगे which is equals to 6/10 multiplied by 5 and also multiplied by 10. 10 is cancelled, so force of limiting friction is 6 5s are 30 Newton. That is your force of limiting friction. Okay students,
Now next your last numerical number 3.10. How much centripetal force is needed to make a body of mass 0.5 kg to move in a circle of radius 50 centimeter with a speed of 3 meter per second square. आपके पास उन्होंने गिवन है, गिवन में आपके पास स्पीड विच इज इक्वल्स टू 3 मीटर पर सेकेंड, mass is equal to 5 kg and radius is equal to 50 centimeter. स्टूडेंट्स 50 सेंटीमीटर गिवन है, आप इसको कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर को मीटर्स में, ठीक है, देन आप इसको सॉल्व करेंगे और फाइंड हमने करना है सेंट्रीपिटल फोर्स. ओके, वी हैव टू सॉल्व द लास्ट न्यूमेरिकल. न्यूमेरिकल नंबर 3.10. centripetal force, FC. F means force and C means centripetal. So FC represents centripetal force. Centripetal force आपने find करनी है. Okay, next. How much centripetal force is needed to make a body of mass 0.5 kg? Mass is equals to 0.5 kg. Okay, and then to move in a circle of radius 50 centimeter. Radius is equals to 50 centimeters. And next, with the speed of 3 meter per second, and speed represents by v, which is equal to 3 meter per second. Students, first of all we have to convert radius 50 centimeter. 50 centimeter को आप convert करेंगे meters में. We know that 1 meter is equals to 100 centimeters. So radius is equal to, for converting centimeter into meters, we have to divide it 50 by 100, which is equals to meter. So radius is equals to 0.5 meter. Now we have to write the formula of centripetal force. Centripetal force is equals to, centripetal force is equal to mv square over r. Fc is equals to, mass is given which is equal to 0.5 kg. Velocity is equals to 3 square and radius is equals to 0.5. 0.5 is cancelled by 0.5. So centripetal force, 3 3s are 9. So students, this is your centripetal force. Okay students, we have completed our numericals. आपने अब इनको अपनी नोटबुक्स में राइट करना है, ठीक है स्टूडेंट्स, और इनकी प्रैक्टिस ही करनी है. अगेन मैं आपको बता देती हूँ, इसके साथ आपने जो चैप्टर में गिवन एग्जाम्पल्स हैं वो भी आपने राइट करनी है, और उसके अलावा आपने ये न्यूमेरिकल्स जो है इनकी प्रैक्टिस भी करनी है. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन प्लीज आस्क. अल्लाह हाफिज.